बच्चों, आपके क्लास 11th में फिज़िक्स में दोनों पार्ट्स में से जितने भी लॉज हैं वो सब मैंने एक साथ लिख लिए हैं। टोटल 19 लॉ आपको याद करने हैं फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो जो ज़्यादातर लॉज हैं वो सेकंड पार्ट हैं तो मैंने सेकंड पार्ट को पहले लिया है और फर्स्ट पार्ट के जो लॉज हैं वो बाद में लिए हैं। तो एक साथ लिखने से क्या है, आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा। फर्स्ट लॉ है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में से हुक्स लॉ। क्या कहता है ये लॉ? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर proportional to each other. Stress is directly proportional to strain, या stress is equal to K into strain, जहाँ पे K क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा है यंग्स मॉड्यूलस। क्या कहता है यंग्स मॉड्यूलस? द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेस to the longitudinal strain is defined as Young's modulus. ओके, और इसमें आप कैसे रख सकते हैं वैल्यू? y इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ओके, Poisson's ratio, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain in a stretched wire is called Poisson's ratio. यहाँ तक तीनों लॉज आपके थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में से। अब जो लॉज शुरू हो रहे हैं ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से, पास्कल्स लॉ एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट is the same at all points if the points are at the same height. Okay, Bernoulli's principle says that pressure plus half rho v ka square plus rho gh is equal to constant. If we move along a streamline, the sum of pressure, kinetic energy per volume and potential energy per volume remains constant. This is Bernoulli's principle. Now the Torricelli's law. This law says that the speed of a flux from an open tank is given by a formula identical to that of freely falling body from the same height. V is equal to root 2gh. Then the next is Magnus effect from the same chapter, mechanical properties of fluids. Magnus effect: a ball which is spinning, the velocity of air above the ball is larger than below it. This difference in velocities of air results in pressure difference between lower and the upper phases, and there is a net upward force on the ball, है ना? This dynamic lift due to the spinning is called Magnus effect. Next, eighth law is Stokes' law. According to George Stokes, the viscous drag force F is equal to 6 pi theta ए वी, यहाँ पे क्या है? ईटा है, ईटा। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। द रिटार्डिंग फोर्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, है ना? ये विस्कोसिटी से लिया हुआ है स्टोक्स लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू हो गया चैप्टर। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज डिफरेंट पीक्स of temperature at wavelengths that are inversely proportional to temperatures. Lambda max is equal to B upon T. फिर है स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। क्या कहता है ये लॉ? द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएटेड by a body at absolute temperature T is proportional to its size, its ability to radiate and its temperature, है ना? ये भी उसी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैटर H इज इक्वल टू ए थीटा टी की पावर 4, जहाँ पे ए क्या है? एरिया है, और थीटा है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट और उसकी वैल्यू दी हुई है, और टी है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग: द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। ओके, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन। फिर है आपका थर्मोडाइनमिक्स में से तो आपको लॉज पता ही है। जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics states two systems in thermal equilibrium with the third system separately are in thermal equilibrium with each other also. First law of thermodynamics क्या कहता है? delta Q is equal to delta U plus delta W, means the energy supplied to the system partly go to increase the internal energy of the system and rest is going to work on the environment.
Second law of thermodynamics states that efficiency of a heat engine can never be unity, and the coefficient of performance can never be infinity for a refrigerator. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मैंने क्या है बहुत डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ आपको स्ट्राइक कर जाए कि क्या है लॉ, आप बाकी आप अपने आप लिख लोगे. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, the total energy is equally distributed in different energy of absorption which is half kb t. ठीक है. डॉपलर्स इफेक्ट तो वेव्स चैप्टर में से लास्ट टॉपिक है. द डॉपलर इफेक्ट is the change in the observed frequency of a wave when the source or the observer or both move relative to the medium, है ना. वो मूवमेंट कैसा भी हो सकता है. तो ये आपकी सेकेंड पार्ट जो बुक थी उस से सारे लॉज कंप्लीट हो गए. कुछ चैप्टर में नहीं है, ऑसिलेशंस में नहीं है. कैप्लर्स लॉ क्या कहता है? कैप्लर, अब ये फर्स्ट पार्ट में से आ गया आपका ग्रेविटेशन में से. कैप्लर्स लॉ कहता है लॉ ऑफ, तीन लॉ हैं इनके, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ पीरियड्स. लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलता है ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकियाई ऑफ द एलिप्स. ओके. लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है? द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. लॉ ऑफ पीरियड्स बोलता है द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आपको पता ही है. फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज. सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स. F इज इक्वल टू के एम ए या F इज इक्वल टू डी पी अपॉन टी टी इज इक्वल टू एम ए. लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देर इज अ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. फोर्सेज ऑलवेज अकर इन पेयर्स. Force on a body A by B is equal to opposite to the force of body B by A. Okay, so these were all the laws about your physics portion.